নমস্কার। মন্দির শহর বিষ্ণুপুরকে আমি প্রণাম জানাই। বিষ্ণুপুর সমস্ত শক্তি স্বরূপা মা বোনেদের আমার প্রণাম। আপনার স্বপ্ন मोदी संकल्प। बंगाल की मुख्यमंत्री इस्कॉन वालों को, रामकृष्ण मिशन वालों को, भारत सेवाश्रम के सन्यासियों को खुले तौर पर धमका रही है, खुले मन से चेतावनी दे रही है। इतनी हिम्मत सिर्फ अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए, उन्हें साधने के लिए टीएमसी इतने निचले स्तर पर उतर आई है। ऐसी सजा देनी है, ऐसी सजा देनी है कि कभी वो हमारे संतों, महंतों, महापुरुषों का अपमान न कर सके। পুরুলিয়ার সভা থেকে সাধুদের একাংশকে আক্রমণ নিয়ে মমতাকে পাল্টা নিশানা করলেন মোদি। গোঘাটের সভা থেকে রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সংঘ, ইসকনের সন্ন্যাসীদের একাংশকে নিশানা করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভোটে বিজেপিকে সমর্থনের অভিযোগ তুলেছিলেন তিনি। এদিকে আজই বঙ্গে প্রচারে এসেছেন নরেন্দ্র মোদী। পুরুলিয়ার সভা থেকে সাধুদের একাংশকে আক্রমণ নিয়ে মমতাকে পাল্টা নিশানা করেছেন মোদী। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারত সেবাশ্রম সংঘ, রামকৃষ্ণ মিশন, ইসকনকে ধমকাচ্ছে। বাংলা তৃণমূল সরকার সাধুদের নাম নিয়ে হুমকি দিচ্ছে। ভোট ব্যাংকের স্বার্থে কত নিচে নেমে গিয়েছে তৃণমূল। আধ্যাত্মিক গুরুদের অপমান মানুষ সহ্য করবে না। এদের এমন সাজা দিতে হবে যাতে সাধুদের অপমানের সাহস না পায়। রামের নামেও আপত্তি তৃণমূলের। ভোট ব্যাংকের স্বার্থে মানুষের আস্থায় আঘাত তৃণমূলের। প্রসঙ্গত, গতকাল গোঘাটের সভা থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, সব সাধু তো সমান নয়, আমরাও সবাই সমান নয়। বহরমপুরে একজন কার্তিক মহারাজ আছেন। ভারত সেবাশ্রম সংঘকে আমি খুব শ্রদ্ধা করতাম, কিন্তু তিনি তৃণমূলের এজেন্টকে বসতে দেবেন না বলেন। তাকে সাধু বলে মনে করি না। সরাসরি রাজনীতি করে দেশের সর্বনাশ করছেন। আসানসোলেও একটা মিশন আছে। ইসকনকেও আমি নদিয়ায় 700 একর জমি দিয়েছি। দিল্লি থেকে বিজেপিকে ভোট দিতে বলার জন্য নির্দেশ আসছে। আপনাদের এই মেয়েটাকে বেঁচে না থাকলে স্বামী বিবেকানন্দের বাড়িটাই থাকতো না। অন্যদিকে পুরুলিয়ার সভা থেকে ইন্ডিয়া জোটকে নিশানা করেছেন মোদী। তিনি বলেন, এখন ইন্ডিয়া জোটের সব তীর শেষ হয়ে গিয়েছে। ইন্ডিয়া জোটের মুখোশ খুলে দিয়েছি। ভোট ব্যাংকের রাজনীতির জন্য অনুপ্রবেশকারীদের মদত ইন্ডিয়া জোটের সদস্যদের। দেশের সংবিধান ধ্বংস করতে চাইছে ইন্ডিয়া জোট। ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ চায় ইন্ডিয়া জোট। মা মাটি মানুষকে রক্ষার কথা বলে ক্ষমতায় এসেছিল তৃণমূল, কিন্তু মা মাটি মানুষের অধিকার লুট করেছে তৃণমূল। শাহজাহানকে বাঁচাতে সন্দেশখালীর মহিলাদের দোষী বলে চিহ্নিত করেছে তৃণমূল। সন্দেশখালীর অপরাধীদের বাঁচাতে নিরীহ মহিলাদের সম্মানহানি করা হচ্ছে। যে বাংলায় সরস্বতী পুজো হয়, সেখানে শিক্ষাক্ষেত্রেও চুরি করছে তৃণমূল। তোলাবাজি আর চুরি তৃণমূলের নীতি। তৃণমূল নেতাদের বাড়ি থেকে নোটের পাহাড় উদ্ধার হয়েছে। আমি নিজে কখনো এত নোট দেখিনি। এরা নিজেরা দুর্নীতি করবে আর মোদীকে দোষারোপ করবে। দুর্নীতিবাজদের জেলের বাইরে থাকতে দেব না। 4 জুনের পর নতুন সরকার গঠনের পর কড়া পদক্ষেপ। এদিন নরেন্দ্র মোদী বাংলায় এসে ঠিক কি বলেছেন দেখুন। আপনার স্বপ্ন मोदी संकल्प। भाई और बहनों, मोदी को अपने लिए कुछ नहीं करना है। न मुझे अपने किसी भतीजे के लिए कुछ करना है और ना ही मुझे किसी भाई के लिए कुछ छोड़ना है। मुझे बांकुरा के जंगलों में बसी मां, बेटे, बेटियों के लिए काम करना है। भाई और बहनों, टीएमसी हो, कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, ये पार्टियां
तीन अलग अलग दिखती है, लेकिन पाप, उन सबके पाप एक जैसे ही है। इसलिए इन्होंने मिलकर इंडी गठबंधन बनाया है। इन्होंने गरीब, मजदूर, एससी, एसटी, महिला, इन सभी को हमेशा सिर्फ नारे दिए हैं, लेकिन जहां भी इन्होंने सरकारें चलाई उन राज्यों को गरीब बनाकर छोड़ दिया। पश्चिम बंगाल इसका ताजा उदाहरण है। कभी दूसरे राज्यों के लोग रोजगार के लिए बंगाल आते थे, आज बांकुरा से, पूरे बंगाल से काम के लिए लोग पलायन होने के लिए मजबूर हुए हैं। ये स्थिति बदलनी चाहिए या नहीं बदलनी चाहिए? भाइयों और बहनों, टीएमसी कांग्रेस लेफ्ट का मॉडल विकास का है ही नहीं। ये भ्रष्टाचार, हिंसा, अराजकता, माफिया, तुष्टीकरण, परिवारवाद, ऐसी बीमारियों में ही फलते फूलते हैं। यहां टीएमसी क्या कर रही है आप जानते हैं? यहां बड़ी बड़ी नदियां हैं, लेकिन खेत में पर्याप्त पानी नहीं है। लेकिन टीएमसी का रेत माफिया यहां बेरोक टोक चल रहा है। यहां अजय और कुनूर नदियों का सीना छलनी किया जा रहा है। यहां नदियों के साथ हुई हरकत बाढ़ की वजह बन जाती है। फिर यहां बाढ़ राहत के नाम पर भी घोटाला किया जाता है। यही खेल यहां बरसों से हो रहा है। इसमें आप तो बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन मौज किसकी हो रही है? मौज होती है टीएमसी के तोलाबाजों की। भाइयों और बहनों, टीएमसी ने पैसे कमाने की भूख में आपके बच्चों को भी नहीं छोड़ा है। यहां शिक्षक भर्ती घोटाले ने युवाओं के साथ ही आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी दांव पर लगा दिया है। गरीब मां बाप ने घर जमीन बेचकर, कर्ज लेकर इनके मंत्रियों को घूस दी, रिश्वत दी। आज वो सारे नौजवान सड़कों पर है। आखिर इनका क्या कसूर था? मैं बंगाल के सभी नौजवानों को गारंटी देता हूं, इन्होंने आपके घर बिकवाए हैं। मोदी टीएमसी के भ्रष्टाचारियों के, उनके बंगले, उनकी गाड़ियां, ये सब कुछ कहे बिकवा करके रहने वाला है। और इतना ही नहीं, मोदी कानूनी सलाह ले रहा है कि कैसे आपका लूटा हुआ पैसा आपको वापस मिले। साथियों, टीएमसी के प्रति बंगाल के लोगों का आक्रोश मैं समझ सकता हूं, लेकिन बंगाल में सुपड़ा साफ होते देख टीएमसी भी बहुत बौखला गई है। अब टीएमसी मानवता की सेवा करने वाले संत समाज को गालियां देना शुरू कर दिया है। इस्कॉन, रामकृष्ण मिशन और भारत सेवाश्रम संघ के सेवा भाव से दुनिया भली भांति परिचित है। इन संगठनों ने बंगाल को गौरव दिया है। सुख दुख में इन लोगों ने लोगों का साथ दिया है। लेकिन यहां की मुख्यमंत्री कहती है कि हमारे ये संगठन देश को बर्बाद कर रहे हैं। मेरा सीधा सीधा आरोप है, यहां की मुख्यमंत्री
मुस्लिम कट्टरपंथियों के दबाव में वोट पाने के लिए हमारे संतों को, हमारे महान संगठनों को सार्वजनिक रूप से गालियां दे रही है, बदनाम कर रही है। हिंदुओं को भगीरथी में डुबो देने वाला बयान, ये भी टीएमसी ने सोच समझकर दिलवाया था। वोट बैंक के दबाव में टीएमसी लगातार संतों को अपमानित कर रही है, बंगाल की परंपरा को अपमानित कर रही है। ये लोग मोदी के विरुद्ध वोट जिहाद की अपील करवाते हैं। ये लोग राम मंदिर को भली भांति बार बार गंदी से गंदी, भद्दी से भद्दी गालियां देते हैं। क्या ऐसी पार्टी को आप बर्दाश्त करेंगे क्या? बंगाल टीएमसी की तुष्टीकरण की नीति का जवाब वोट से देंगे कि नहीं देंगे? भाइयों और बहनों, टीएमसी को सिर्फ अपने वोट बैंक से मतलब है। यहां बहुत बड़ी संख्या में हमारे शरणार्थी परिवार रहते हैं जो दूसरे देश से प्रताड़ित होकर भागकर यहां आए हैं। टीएमसी कांग्रेस लेफ्ट ने इतने सालों तक इन साथियों को अपने हाल पर छोड़ दिया था। मोदी ने इन परिवारों को सीएए कानून लाकर नागरिकता की गारंटी दी। मुझे खुशी है कि 300 शरणार्थी परिवारों के पहले बैच को सीएए के तहत नागरिकता मिल भी चुकी है। पश्चिम बंगाल के सभी शरणार्थी परिवारों को भी अब तेजी से नागरिकता मिलने लगेगी। ऐसे काम होते हैं तभी लोग मोदी की गारंटी पे भरोसा करते हैं। साथियों, बंगाल की ये धरती नेक नियत का मतलब अच्छी तरह जानती है। दुर्भाग्य से आज बंगाल में जो सरकार है उसकी नीयत में ही खोट है। मोदी दिल्ली से मुफ्त चावल बेचता है ताकि एससी, एसटी गरीब परिवार की किसी मां को अपने बच्चे भूखे न सुलाने पड़े। लेकिन टीएमसी ने चावल में भी घोटाला कर दिया। जो थोड़े बहुत राशन के पैकेट इन लोगों ने बांटे उसमें भी टीएमसी ने अपना स्टिकर चिपका दिया। मोदी ने पक्का घर बनाने की योजना बनाई, लेकिन यहां टीएमसी ने उस पर अपना स्टिकर लगाया और तेलाबाजों के हवाले कर दिया। यानी इन्होंने मोदी सरकार की योजना ही चुरा ली। ऐसी खोटी नीयत वालों को बंगाल के लोग कभी भी माफ नहीं करेंगे।